उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से महाकुंभ 2025 प्रील्यूड कार्यक्रम का आयोजन को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के होटल अशोक में हुआ। मुख्य उपस्थिति केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की रही। महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि, कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त एवं उच्चायोग के अधिकारियों, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया के साथ साथ केंद्र और प्रदेश के कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित महाकुंभ 2025 प्रील्यूड का प्रमुख उद्देश्य संगम नगरी प्रयागराज और वहां के तीर्थ स्थलों की झलक पेश करना रहा। यह विशेष आयोजन आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराओं की उस महायात्रा का आरंभ है जो 2025 में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के रूप में सामने आएगी। प्रील्यूड का उद्देश्य महाकुंभ 2025 के आयोजन से पूर्व उसकी महत्ता, मूल्यों और तैयारियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा, महाकुंभ भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति तथा मानवता का उत्सव है। हम प्रयागराज में आयोजित होने वाले आगामी महाकुंभ 2025 के लिए पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित करते हैं। यह आयोजन वर्तमान के भूराजनीतिक अशांत समय में वैश्विक एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। हम महाकुंभ को सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। यदि आप भारत घूमना चाहते हैं तो अवश्य महाकुंभ का हिस्सा बनें। हम सभी यात्रियों के अनुभव को अद्वितीय बनाने के लिए आवास, परिवहन और महाकुंभ मेला क्षेत्र और उसके आसपास के निर्देशित दौरों के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। It is just not a religious gathering. It is a celebration of humanity, unity, and the rich tapestry of our diverse culture. This festival is the largest congregation in the world. The Kumbh Mela is a unique confluence of faith, tradition, and the social harmony. Millions of pilgrims and visitors from all across the world come together to partake in this extraordinary event, where they immerse themselves in the sacred waters, seeking spiritual renewal and enlightenment. It is a time when the essence of the India's spiritual heritage shines brightly, that binds our unity and unites us all. As we prepare for the upcoming Kumbh Mela, I extend a heartfelt invitation to each of you and through you to the people of your countries to participate in this monumental event. Your presence would not only enhance the experience of the attendees but also symbolizes the spirit of global unity and cooperation, which is much desired in the today's circumstances and the geopolitical turbulent time. We believe that your engagement will foster deeper cultural exchange and the strengthen which bonds and unites between our two nations. The Kumbh Mela is also an opportunity for cultural exchange. It allows us to showcase India's rich heritage, arts and crafts, while also providing a platform for international visitors to share their own cultures. We are committed to ensuring that this event is not just a pilgrimage, but a vibrant celebration of diversity,
where then every participant can share their stories and experiences. We will make sure to prove the saying that if you wish to see India, which is a continent-sized country in itself, at one place and in one go, back home is the only occasion. Participation, we are working diligently to provide comprehensive logistic support, including accommodation, transportation, and guided tours of the event and its surroundings. We want to ensure that your experience is seamless and enriching, allowing you to fully immerse yourself in the festivities. In conclusion, I urge you to consider the invitation not just as an event to attend, but as an opportunity to witness the spirit of India in its truest form. Let us come together to celebrate the Kumbh Mela, to share in the joy of spirituality, and to strengthen the ties that binds our cultures and nations. The festival of unity, the unity in diversity, and the festival which unites the world. Thank you for your attention, and I look forward to welcome you all there at this unparalleled celebration of faith and culture. Thank you very much. कल्प करने के दृष्टिकोण से, भारत को जानने और पहचानने के दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर से एकत्रित हो उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुंभ वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा होने वाली है, उन सब के लिए एक अविस्मरणीय अवसर बने। वो एक बेहतरीन याद वहाँ से लेकर के जाए और साथ ही साथ में उनके मन का इच्छित संकल्प सिद्ध हो। इस दृष्टिकोण से वहाँ अभूतपूर्व तैयारी की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के कुंभ के मेले में आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के लिए कुंभ के अवसर को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊँचा उठाने के लिए हमने उनके ट्रैवल, उनके स्टे, उनके अकोमोडेशन और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इस सब का उन्नयन करने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं की है। आज माननीय उत्तर प्रदेश के इस टूरिज़्म मिनिस्टर श्री जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली में आयोजन किया गया। उसके केवल धार्मिक आस्थाओं के एक मेले के रूप में न हो, अपितु कुंभ भारत को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में हमने, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर बात कर यहाँ दुनिया के सभी देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 50 से ज़्यादा देशों के एम्बेसी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिशियल्स ने या एक्सीलेंसी एम्बेसडर्स यहाँ शिरकत की है। कुंभ में मिलने वाले अनुभव के बारे में जाना है, कुंभ की व्यवस्थाओं को समझा है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस आयोजन के चलते हुए निश्चित रूप से आने वाले कुंभ में विदेश से आने वाले सैलानियों की जो भारत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और भारत की तरफ के लिए जिस तरह का उत्सुकता का भाव आजकल बना है पूरे विश्व भर में, उसके और लिए और अधिक प्रेरित करेंगे। भारत को जानने के लिए अधिकतम लोग इस कुंभ के अवसर पर आए। ये कुंभ में जो विविधताओं से बने हुए भारत को एकता के सूत्र में संबद्ध करता है, बांधता है। ये अवसर पूरा विश्व के लिए भारत की पहचान बने। इस दृष्टिकोण से आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को और विशेष रूप से सम्मानीय मंत्री जयवीर सिंह जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद।